Hello everyone, welcome back. Today we are going to start the topic based on the e-banking services that are provided by bank. In the last lecture we have discussed the various benefits that the customer and the bank get from using e-banking services. In today's lecture we will discuss the various form of e-banking services which we get from the banking system. We will study about 6 different modes of digital payment, that is debit card, credit card, NEFT, RTGS, ATM, e-cash, digital cash. So the first one is debit card. Debit card is basically a plastic card which allows you to use the amount that is already available in your bank account. It's a facility offered to the account holder to make payment up to the amount of credit balance in their account. How much amount do you have is what you can use for making payments using a डेबिट कार्ड. ठीक है, हम इसके थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स भी कर सकते हैं, हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे भी इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. एंड after this the amount get transferred from a bank account to the person to whom we are paying the sum. Next is credit card. Credit card is also like a bank account but without having balance. In credit card you get a credit limit that up to this much you can use the amount, and on that you have to pay interest, so it is like a short term loan. NEFT means National Electronic Fund Transfer. NEFT is a method that is used to do online payments from one place to another. Under this, you can transfer the funds directly from your account to another. There is a difference between NEFT and RTGS. That is our next payment method. RTGS में देखो मिनिमम 2 लाख का आपका सेटलमेंट होना चाहिए, मिनिमम 2 लाख रुपीज़ होने चाहिए. ओनली देन यू कैन डू RTGS. बट NEFT किसी भी अमाउंट का आप कर सकते हैं. अनदर डिफरेंस इज RTGS जो है वो रियल टाइम पे होता है, यानी कि वो जिस टाइम आप सेटल करेंगे, जिस टाइम आप ऑर्डर करेंगे उसी टाइम पे किया जाता है. एंड ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस पे होता है. ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स 1-on-1 बेसिस पे. बट NEFT इज डन इन बेंचेस एंड ऑन नेट बेसिस. दैट मीन्स कि एक जैसे अभी आपने अगर NEFT के लिए अप्लाई किया तो दैट इज़ नॉट डन इन इंस्टेंटली, दैट इज़ एडेड अप. ठीक है, उसको ऐड करके वहाँ पे बनाते हैं वो लोग बैचेस, 1 आवर 2 आवर के बैचेस बन गए. फिर उसमें नेट बेसिस पे, यानी कि जितना यहाँ से जाना है पहले वो जाएगा, जितना यहाँ से जाना है माइनस जितना दूसरे बैंक से हमारे पास पेमेंट आना है, उनका जो ओवरऑल सेटलमेंट होगा, केवल जो नेट सेटलमेंट होगा, दैट इज ट्रांसफर. 1-on-1 ट्रांसफर ना होके ओवरऑल एग्रीगेशन किया जाता है. एंड उस एग्रीगेट में जितना हमें रिसीव होना है या पे करना है, जो नेट अमाउंट है, दैट इज ट्रांसफर. Minimum amount of transaction of RTGS is 2 lakh, whereas that there is no minimum limit in NEFT. Over 72,000 branches allow RTGS facility, whereas NEFT is available in more than 75,000 branches. Another one is RTGS, or as we know, real-time gross settlement. Real-time gross settlement means in this the online payment is done in real time and on gross settlement basis. Real time means the payment transaction is not subject to any waiting period. जैसे ही आपने प्रोसेस किया वैसे ही उसका सेटलमेंट कर दिया जाता है. ठीक है. एंड ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स 1-on-1 बेसिस पे, कि आपने इधर से पेमेंट किया. ठीक है, आपने इधर से पेमेंट किया तो उसी टाइम ये वेट नहीं करेंगे बंच बनाया जाए और फिर उसको नेट बेसिस पे हम सेटल अप करें. दैट इज डन इमीजिएटली ऑन 1-on-1 बेसिस. एंड वंस प्रोसेस द पेमेंट एट फाइनल्स एंड इररिवोकेबल. पेमेंट एक बार हो गई तो हो गई, आप उसको कैंसिल फिर दोबारा नहीं कर सकते. देयर आर फ्यू फीचर्स ऑफ RTGS. फर्स्टली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय RBI. देयर इज़ नो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, बट अकाउंट को अकॉर्डिंगली डेबिट या क्रेडिट किया जाता है. ठीक है. हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए RTGS सूटेड बिकॉज मिनिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू शुड बी 2 लाख. उससे कम अमाउंट के लिए RTGS आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है. पेमेंट जो आप करेंगे वो फाइनल रिवोकेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. वंस डन इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ठीक है ना. द फीस वैरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. RBI सेट्स द मैक्सिमम लिमिट कि मैक्सिमम इतनी फीस आप चार्ज कर सकते हैं. रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द बैंक ओनली. ठीक है. RTGS यूज़ करने के लिए बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम में रजिस्टर होना, यानी CBS ब्रांच होनी ज़रूरी है. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, यानी अगर उसका IFSC कोड नहीं है तो RTGS नहीं कर सकती है. तो इसके लिए 72,000 से ब्रांचेस ज़्यादा ही हैं जिनमें अब ये फैसिलिटी अवेलेबल है.
Next come the ATM. We already know ATM means automated teller machine. Teller is a person who receives and accept deposits. अब ऑटोमेटेड टेलर कौन हो जाएगा? जो ऑटोमेटिकली काम करता है. मशीन एक ऐसी विच कैन डिपॉजिट एंड प्रोवाइड अस मनी ऑन आवर बिहाफ. ठीक है, ये 24/7 हमारे लिए काम करता है एंड इट इज़ कंपेरेटिवली चीपर टू हैव एन ATM देन एक्चुअली हायरिंग एन एम्प्लॉय, बिकॉज वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसको यूज़ करने का सिस्टम वही सिंपल सा, कार्ड इंसर्ट करेंगे, वी विल एंटर आप पिन, अगर वेरीफाई होता है तो उसके बाद हम आगे की ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम ई कैश या डिजिटल कैश. दिस इज़ द न्यू मेथड दैट वी ऑल आर यूजिंग. पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, UPI हो गया, फ़ोन पे हो गया, दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द ई कैश. ठीक है. इसके थ्रू हम फ़ोन के थ्रू या अपने कंप्यूटर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. इट इज़ सिमिलर एज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बस इसके लिए आपके पास प्रॉपर वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट इसके थ्रू ट्रांसफ़र फिर की जा सकती है. सो दीज वर द डिफरेंट मेथड्स दैट आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, and in the next video we will discuss about more services that are provided in they're provided for business. Till then, take care and have a great day.